Hello students, today we start that new chapter that is of evolution. Evolution, what is evolution, how evolution is occurred, what was the stages of the evolution from ancient organisms to human being, how they are formed. All will study in the evolution. But if we see first of all, what is the process of evolution? Evolution is the very slow process. ऐसा नहीं कि विद इन सम ईयर या कुछ टाइम के अंदर ही इवोल्यूशन हो गया और ह्यूमन बीइंग, बट इट इज स्लो प्रोसेस. Evolution is the slow process, but it is continuous changes occur in the environment and that is the irreversible. ऐसा नहीं कि चेंजेस हुआ और वापस से वही चीजें आ गई तो वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे. तो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, continuous changes and irreversible changes in the environment, that is known as evolution. Along in the evolution many changes is there, just like changes in occur in the flora and fauna. Flora, that plant changes also occur in the plants and as well as animals. जैसे जैसे प्लांट चेंज होते हुए नेचर में, वैसे वैसे उनके साथ साथ एनिमल्स का भी चेंजेस हो गया. इवोल्यूशन में और भी कुछ चेंजेस हुए. इट इन्वॉल्व increase in adaptations. Adaptations means that if plant is there, they will be adapt many things according to changing in environment, according to changing temperature, according to changing in atmosphere, water moisture or any other content of the atmosphere change. According to them they will be adapt. तो जो फ्लोरा और फोना थे वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते गए, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन. एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर विल बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज एंड ऑल्सो increase their efficiency. If you see the low organism and higher organism, their efficiency is quite different. So that evolution also involve increasing adaptations, complexity of the structure and functional efficiency is there. So this is the evolution. But how the first life forms on the earth? सबसे पहली लाइफ अर्थ पे कैसे आई? दैट यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स फॉर्म फर्स्ट 20 बिलियंस ईयर बैक. 20 billions year back, that whose huge universe were formed. How it is formed? Scientist says one gives the theory that is known as Big Bang theory. Big Bang theory. According to this theory, a huge explosion occur in the atmosphere. एटमोस्फेयर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा और उसी विस्फोट से के थ्रू बहुत सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ होगा. गैलेक्सीज नेचर के अंदर होती है. उन्हीं में से एक गैलेक्सी है अपनी, जिसको अपन मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. तो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा जिससे बहुत सारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ होगा. देन टेम्परेचर, जो एक्सप्लोजन से टेम्परेचर अप हुआ होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन हुआ होगा. तो एटमोस्फियर के अंदर वाटर और हीलियम वगैरह गैसेज रही होगी और उन्हीं के कंडेंस होने से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज रही होगी और इनके कंडेंस होने से वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा. बहुत सारी गैलेक्सीज है एटमोस्फियर में, उसमें से एक गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी. इफ वी सी इन नाइट टुवर्ड्स द स्काई, दैट स्पेशल our galaxy is seen, that is the Milky Way galaxy, in which that solar system is there. उसी मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम उसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. मिल्की एक गैलेक्सी कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. ऐसा नहीं कि एक ही स्टार होता है, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हो सकते हैं और सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. तो उसका एक मेन स्टार है जिसको अपन कह सकते हैं सन इज द स्टार एंड other planet is there, and earth is the one of the planet of solar system. Earth is the one of planet of the solar system, and earth formed just 4.5 billions year ago. अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो. उस टाइम यहाँ पर कोई एटमोस्फियर नहीं था. नो एटमोस्फियर वॉज देयर. No atmosphere was here.
on the earth at the time of formation of the earth, and it was formed 4.5 billion year back. एटमोस्फियर नहीं था, परंतु एटमोस्फियर में कुछ गैसेस थी, जस्ट लाइक different gases is there along with water vapors. वाटर वेपर्स थे, मेथेन गैस उस टाइम थी, अमोनिया हो सकती थी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड थी. दीज गैसेस उस टाइम रिलीज हुई थी. मोल्टन मास यानी अर्थ का जो लोअर पोर्शन था, अर्थ का जो सरफेस थी, उसमें गर्म जो जिसको अपन मोल्टन मास कर सकते हैं, गर्म पर सरफेस एरिया था, उसी में से वाटर वेपर्स, मेथेन गैस, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी. और ये फिर धीरे धीरे वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के पानी का फॉर्मेशन हुआ. और सपोज पानी बना हुआ होगा तो H2O दैट अगेन ब्रेकअप विद द हेल्प ऑफ UV रेज ऑफ द सन इनटू H2 प्लस O2. वाटर से UV रेज के थ्रू ब्रेकअप होने के बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा. ऑक्सीजन लाइट होने की वजह से वापस एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई हो, प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन लाइट होने की वजह से एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई हो. बची हुई गैस ऑक्सीजन प्लस मेथेन CH4, ये मिलकर के इन वापस वाटर का फॉर्मेशन किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया होगा. उस टाइम हो सकता है कि वापस ऑक्सीजन मिलके मेथेन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा. जब वापस ऑक्सीजन के साथ साथ O2 प्लस O मिलके हो सकता है O3 का फॉर्मेशन होगा, जिससे ओजोन लेयर was also formed during that time. और उसी टाइम वाटर वेपर्स बने होंगे, वाटर वेपर्स वापस कंडेंस होंगे थ्रू रेन. तो अर्थ पर जो बहुत डिप्रेशंस थे, बहुत जो अनइवन सरफेस था, दैट विल बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर्स, पानी के थ्रू रेन. तो ये कंटिन्यूसली लगभग 4 बिलियन ईयर तक ये चला होगा. तो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? अर्थ फॉर्मेशन वाज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो. 4.5 बिलियन year ago that earth formation was there, and the first life arise on the earth, that is of 5 million year ago, 500 million year ago. First life was formed on the earth approximately 500 million year ago, means 400 million 4000 million year या 4 बिलियन ईयर तक अर्थ पे कुछ भी नहीं था. दैट अर्थ इस तरीके से अपने आप में चेंज हो रही थी जिसपे कि वहां पर लाइफ आने की पॉसिबिलिटीज हो. एंड द फर्स्ट लाइफ वाज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ 500 million year back. That origin of life. That 500 million year back, first life was formed. But how the first life was formed? Different scientists given the different ideas about that first life. Some Greek thinkers, they given the theory that is known as panspermia. That is of panspermia. According to this theory, any spores come out from external atmosphere of the earth. यानी ग्रीक थिंग्स की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को पैंसपर्मिया कहा गया. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ के बाहर से कहीं दूसरी गैलेक्सी से, दूसरे प्लैनेट से पहली बार कोई स्पोर आया होगा और उस स्पोर से धीरे धीरे दूसरे ऑर्गेनिज्म या सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा. That is panspermia theory, which was given by the Greek thinkers.
कुछ बिलीव करते हैं कि दैट इज फ्रॉम द डिकिंग मैटर, रोटन मैटर, मैटर से डिकिंग एंड रोटन मैटर से भी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। डिकिंग और डेड एंड डिकिंग मैटर्स, डेड एंड डिकिंग मैटर से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, सॉरी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा और फर्स्ट लाइफ बनी होगी, एंड दैट इज द स्पॉन्टेनियस थ्योरी। जिसको कि क्या दिया गया, स्पॉन्टेनियस थ्योरी दी कही गई कि जो अचानक से या और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पहली लाइफ बनी हुई होगी, और स्पॉन्टेनियस थ्योरी, अचानक से स्वतः फॉर्मेशन हुआ होगा। बट द साइंटिस्ट लुइस पास्चोर डिस्कार्ड दिस थ्योरी। लुइस पास्चोर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। लुइस पास्चोर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे। एक फ्लास्क के अंदर, उन दोनों फ्लास्क में उन्होंने कल्चर मीडियम ग्रो किया था। ओके, एक फ्लास्क को ऐसे ही ओपन रखा था और दूसरे फ्लास्क के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब बांधी और ट्यूब को बहुत लंबी कर दी इस तरह से। ठीक है, इन दोनों को फ्लास्क को क्या बॉईल किया, इनमें जो कल्चर मीडियम उनको बॉईल किया और ऐसे ही रख दिया। कुछ टाइम बाद देखा कि इसमें कुछ फंगस वगैरह या कुछ जर्म्स ओरिजिनेटेड हो जाते हैं, बट नॉट ऑन दिस। ठीक है, फिर उन्होंने इसमें भी क्या किया, इसकी ट्यूब को भी कट कर दिया, इस ट्यूब को कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो देखा कि इसमें भी जर्म्स आ गए। और उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी को फिर डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई भी चीज़ नहीं ग्रो होती है, इसमें कहाँ से है, एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें थी वो वहाँ से यहाँ से इसमें कल्चर मीडियम में आई, यानी इस पे फेवरेबल कंडीशन मिली और वो ग्रो हो गई। इसमें जब तक ये थी ट्यूब लाइक थी, तब तक एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। जैसे इस ट्यूब को यहाँ से हटाया तो इससे एनवायरनमेंट में कांटेक्ट हो गया और एनवायरनमेंट से स्पोर आकर के यहाँ पे वो जर्मिनेट हो गए। इन दिस वे दैट लुइस पास्चोर डिस्कार्ड द स्पॉन्टेनियस थ्योरी। लुइस पास्चोर ने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। इसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट ऑपेरिन एंड इंग्लैंड साइंटिस्ट हेल्डेन। हेल्डेन है, ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने एक थ्योरी दी थी दैट इज नॉन एज केमिकल इवोल्यूशन। According to these Russian scientist Oparin and England scientist Haldane, they says different organism or all the organism or the first life was from the some inorganic materials. उन्होंने कहा some inorganic materials that may be RNA, protein, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल रहे होंगे। तो आरएनए और प्रोटीन से पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ होगा और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो किसी फर्स्ट लाइफ के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे। और अगर अपन लाइफ का जो अर्थ का जो पोजीशन देखें, अर्थ की जो कंडीशन देखें, उस टाइम भी अर्थ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। अर्थ पर CH4 थी, अर्थ पर अमोनिया थी, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, अर्थ पर वाटर वेपर्स थी। और इसका एक एक्सपेरिमेंट देखें, एक्सपेरिमेंट दैट वाज बी कंडक्टेड बाय द मिलर एंड एटल। मिलर एटल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मिलर एटल एक्सपेरिमेंट, this is the Miller experiment. This is the Hughes bulb. Here condenser was there.
then this was the Miller experiment. Here boiling water was there. Boiling water को बॉईल किया, यहाँ से ये ट्रांसफर होकर इधर आएगा इस जगह पे. यहाँ पर गैसेस थी. दैट गैसेस वाज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen, and water vapors comes from that side, H2, that will be reacted at high temperature in the presence of electrodes. These are the electrodes. यानी इन्होंने यहाँ पे वाटर को बॉईल किया, वो वाटर वेपर्स बन के यहाँ आया. यहाँ पर और दूसरी गैसेस थी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स आए. इनको हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में एट अप टू 800 डिग्री सेल्सियस में इन्होंने रिएक्टेड किया. देन उन्होंने यहाँ पे इस कंडेंसर के थ्रू वापस कंडेंस किया. वापस ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा बहुत टाइम तक. तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि आफ्टर मैनी टाइम्स, बहुत समय के बाद, कि यहाँ पर जो चीज़ें मिली इस जगह पे, दैट इज इक्विवेलेंट टू अमीनो एसिड्स. दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. कुछ अमीनो एसिड टाइप का मिला था. दिस मिलर एट अल एक्सपेरिमेंट ऑल्सो फेवर द केमिकल इवोल्यूशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय द ऑपरेन एंड हेल्डॉन, जिनमें केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी. यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल जस्ट लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड वाटर. ये और उस टाइम पर अर्थ में का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहा होगा. तो उस टेम्परेचर को हाई करने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रखा और फिर को कंडेंस किया, वापस वही काम किया. तो जो फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक मैटर बना, दैट रिजेंबल्स विद द अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन. उसी तरह से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ होगा. आरएनए एंड प्रोटीन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म फर्स्ट लाइफ, और दैट इज virus 2, that Monera or higher organisms will be developed. So this Miller et al. Experiment support the theory of chemical evolution. So first lives arise just before 500 million years back with the help of inorganic materials. This is the origin of life on the earth.